Hello students, today's chapter's name is transpiration. It is the chapter of class 10. Okay, and at first we have to know the definition of stomata and what is stomata. Stomata is the opening or stomata is the opening of lips of it is situated upper and lower surface of lips, and in monocotyledon plant it is situated in both side of leaves, and the dicotyledon leaves it is situated only in the lower surface. Okay, the what is stomata? Stomata is the small pore situated on the lip surface. देखो this is the structure of stomata. I am drawing it. Two cells are covering these pores. This pores is called stomata. Okay, and beside the stomata, these cells are called gut cell. Okay, gut cell. So these cells are called gut cell, and it is the pore is called stomata. Okay, we cannot see in naked eye. We have to see the stomata with the microscope. Okay, and this stomata is situated on the surface of leaves. Okay, and when the excess water of any plant, okay, loss through the stomata by vapor, as a vapor, then it is called transpiration. Okay, the when transpiration means the excess of loss of water, excess water loss from stomata, and as a vapor state, then it is called transpiration. Okay, देखो ट्रांसपीरेशन थ्री टाइप में होता है. ठीक है, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन. ओके, when transpiration occur through the stomata, it is called stomatal transpiration, and other two transpiration also happens in plant's body. They are called cuticular transpiration and lenticular transpiration. Okay, so what is cuticular transpiration? Cuticular transpiration takes place through the cuticle. So what is cuticle? देखो, cuticle is the waxy, okay, a waxy layer present above the epidermis of living plant. Okay, it is like a cuticle is like a waxy layer. when जैसे ये देखो लिप्स का ऊपर एक वॉक्सी लेयर होता है. जब इसको हम मतलब क्यूटिकल कहते हैं. क्यूटिकल के ऊपर जब क्रैक होता है, उसको क्यूटिकल से कुछ वाटर वेपर जब निकलता है, तो उसको क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ठीक है, और व्हाट इज लेंटिसल? देखो, लेंटिसल इज द स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्की टिश्यू known as the lenticel, हाँ, कवरिंग द स्टेम. जैसे देखो ये ब्रांच, ये जो प्लांट्स और ब्रूसेस जो प्लांट होता है ना, उसका जो स्टेम होता है, स्टेम में छोटा बड़ा कोई ये पोर्स होता है. ठीक है, ये पोर्स को हम लेंटिसल कहते हैं. ये लेंटिसल से जो पानी वेपर से निकलता है, तो हम उसको लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ठीक है, so there are three types of transpiration. One is main transpiration in plant body is called stomatal transpiration, and other two transpiration are called cuticular and lenticular transpiration. Okay, okay, देखो ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है. व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन? ओके, एट फर्स्ट ट्रांसपिरेशन का जो सिग्निफिकेंस होता है, सक्शन प्रेशर, सक्शन फोर्स. ओके, व्हाट इज सक्शन फोर्स ये देख लो पहले. तो हम अभी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन ये कहने जा रहा हूँ. तो एट फर्स्ट सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेशंस। नंबर 1 ये देखो, क्या लिखा, सक्शन फोर्स। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लिप्स increases the concentration of cell sap, thereby increasing the osmotic pressure also. Okay, if the transpiration rate increases, the suction pressure is also increases. Then it pulls up the storage water and sap towards the leaf, so the absorbed root water can reach to leaves through the xylem vessels. Okay, it is the suction, it is called suction force. For that force, leaves can get water, and from this water it can mix food for their own body. Okay, number 2, pooling effect. Transpiration causes pooling. Number 2, cooling effect. Okay, what is cooling effect? Transpiration causes cooling of plant surface by the evaporation of water and prevents heat injury to the plants during summer. तो कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो, जब एक्सेस वाटर ये स्टोमाटा से निकल जाता है तो ये बॉडी बोलो कूल डाउन हो जाता है, इसलिए जो समर में एक्सट्रीम हीट में ये प्लांट सर्वाइव कर सकता है. इट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हीट इन समर टाइम. ओके, नंबर 3 देखो, नंबर 3 ट्रांसलोकेशन. देखो, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान में कोई बोलो कुछ मैंने रीच कर जाना. ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स सॉल्ट along with the water take places through the xylem of the plants due to transpiration. Okay, so number 3 the significance can call translocation. Okay, नंबर 4. अच्छा, नंबर 4 देखो, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर. देखो, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर. तो एक बॉडी से एक्सेस वाटर जब इसमें ट्रांसपिरेशन से निकल जाता है तो ये प्लांट्स एक्सेस वाटर से बोलो कोई स्पॉइल नहीं हो जाता. एक बॉडी जब वाटर ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू एक्सेस वाटर, इट कैन ऑल्सो स्पॉइल्ड, सो इट प्रिवेंट्स ए प्लांट्स बाई लॉसिंग इट्स एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एंड सेव इट. ओके, अच्छा, ये जो था ये बोलो ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस था. ठीक है, इसके बाद हम ट्रांसपिरेशन का रेट कौन कौन फैक्टर से डिपेंड करता है ये पहले सुन लो. पहले देखो, ट्रांसपिरेशन 2 फैक्टर से डिपेंड करता है, एक इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर. तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. पहले देखो, इंटरनल फैक्टर्स के बारे में पहले सुन लो. नंबर 1, लीफ एरिया. व्हाट लीफ एरिया? देखो, एक छोटा जो पत्ता है, लीफ है, उसका लीफ एरिया कम है, और एक जो लीव्स का एरिया जब ज़्यादा होता है तो इसका लीफ एरिया ज़्यादा होता है. तो इसमें लीफ एरिया ज़्यादा होने से इसमें स्टोमाटा भी ज़्यादा होगा. इसमें लीफ एरिया कम है इसलिए स्टोमाटा भी कम है. ठीक है, इसलिए जिसका लीफ एरिया जितना ज़्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, उसका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी उतना ज़्यादा होगा. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल with the rate of transpiration. Okay, so the size of the leaves is directly proportional to the rate of the transpiration. Okay, जैसे smaller size of the leaves reduces the loss of water compared to the large size leaves. Okay, अच्छा, नंबर 2 है लीफ स्ट्रक्चर. देखो,
जैसे डिजर्ट में जो प्लांट होता है जिसको हम जीरोफाइट प्लांट कहते हैं, उसका जो लिप्स होता है वो बोलो उसका साइज छोटा होता है। हाँ, उसका जो स्टोमाटा उसमें बोलो उसमें गार्ड सेल, ये जो गार्ड सेल होता है वो बड़ा होता है, इसलिए स्टोमाटा छोटा हो जाता है। तो वो नहीं चाहता उसका एक्सेस वाटर स्टोमाटा से निकल जाए, क्यों, वो जो एरिया में होता है उसमें पानी कम होता है, इसलिए it also wants to save water, so it cannot lose water through transpiration. So their modified leaves also help their loss, to prevent to loss of water. Okay, so they have small leaves. Some desert plants leaves converts to spine, like Opanisia and other plants converts its leaves to spine, so the surface area also decreases, so the leaf structure also a factor on transpiration. जैसे लीफ स्ट्रक्चर जिसका जैसे ओपनशिया का जो लिप्स वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए उसका ट्रांसपिरेशन रेट भी कम हो गया। ठीक है, तो अच्छा, नंबर 2 ये था इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में पहला आता है लाइट। देखो, लाइट जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में डिपेंड करता है। जैसे लाइट में स्टोमाटा ओपन होता है और ये जो स्टोमाटा ये लाइट में ओपन होता है, और जब लाइट चला जाता है ये क्लोज हो जाता है। तो लाइट ओपन होता है तो स्टोमाटा भी, लाइट ऑन होता है तो स्टोमाटा ओपन होता है, तब इसमें से ट्रांसपिरेशन स्टार्ट होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। और जब डार्क टाइम नाइट टाइम में तो ये क्लोज हो जाता है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घट जाता है। ठीक है, नंबर 2 टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर also opens the stomata, so when it opens the rate of transpiration also increases, so temperature is also a factor for what transpiration rate increases. Okay, number 3 देखो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, एयर में कितना वाटर वेपर मौजूद है। जितना वाटर वेपर एयर में होता है उसका ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसलिए तो रेट ऑफ ह्यूमिडिटी जितना कम होगा, उसमें एयर में जितना वाटर वेपर कम होगा उसका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। इसलिए विंटर में जब रेट ऑफ ह्यूमिडिटी कम होता है एयर में, तब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, और जब रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घट जाता है। ये था बोलो इंटरनल फैक्टर, सॉरी एक्सटर्नल ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो नेक्स्ट टाइम हम और कुछ डेफिनेशन हमको जानना पड़ेगा। इसके बाद जो डेफिनेशन आता है वो देखो गार्टेशन। तो गार्टेशन एंड ट्रांसपिरेशन ये दो डिफरेंट चीज़ होता है। तो व्हाट इज़ गार्टेशन ये पहले देख लो। देखो, गार्टेशन के जानने के लिए तुमको हाइड्राथोड्स, व्हाट इज़ हाइड्राथोड्स ये पहले जानना होगा। देखो, ये एक लिप्स होता है, ये लिप्स का ये एज होता है, ये एज में कुछ थोड़ा थोड़ा पोर्स होता है, जो पोर्स को हम हाइड्राथोड कहते हैं। तो व्हाट इज इट लोकेट्स थ्रू द प्रोसेस पोर्स प्रेजेंट एट द मार्जिंग और एंडिंग एट द लिप्स कॉल्ड हाइड्राथोड्स। जब हाइड्राथोड्स में रात का नाइट का टाइम में इसमें से पानी लिक्विड स्टेट में ड्रॉप वाइज बोलो आउट हो जाता है लिप्स प्लांट बॉडी से, तो उसको हम गार्टेशन कहते हैं। तो व्हाट इज गार्टेशन? गार्टेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ इंटैक्ट प्लांट्स। इट इज कॉल्ड बोलो एक्सर्डेशन और गार्टेशन। ओके, एक्सर्डेशन और गार्टेशन का मीनिंग एक ही होता है, और हाइड्राथोड से वो गार्टेशन वाटर ड्रॉपलेट से निकल आता है। ठीक है, ये नाइट टाइम में होता है। तो गार्टेशन और ट्रांसपिरेशन का में डिफरेंस भी होता है। देखो, गार्टेशन रात में होता है और ट्रांसपिरेशन दिन में होता है, ये एक डिफरेंस होगा। ट्रांसपिरेशन मेनली स्टोमाटा से होता है, गार्टेशन हाइड्राथोड से होता है, ये सेकेंड डिफरेंस होगा। ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर से निकलता है और गार्टेशन में वाटर ड्रॉपलेट से निकलता है। ये 3 डिफरेंस हो गया गार्टेशन एंड ट्रांसपिरेशन के बीच में। इसके बाद आता है देखो व्हाट इज ब्लीडिंग। देखो, ब्लीडिंग मतलब कोई प्लांट में जब कोई इंजरी आ जाता है और हम काट देता है, तब उसमें से
बोलो उसका प्लांट सैप निकल आता है, फ्लो अप हो जाता है, तब उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। जैसे देखो कोई रबर प्लांट में तुम कोई छेद कर दो और कोई कट कर दो, जैसे एक रबर प्लांट है इसमें तुम कट कर दो, उसमें से रबर निकल आएगा, ठीक है, तो इसको हम ब्लीडिंग कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो एंटी ट्रांसपिरेंट्स। व्हाट इज एंटी ट्रांसपिरेंट्स? देखो एंटी ट्रांसपिरेंट्स इज अ फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स which help in the reducing of excessive loss of water by closing stomatal openings। जैसे देखो हम कोई लिप्स का ऊपर कोई ऑयल वैक्स, हाँ, इमल्सन, ये सब उसका ऊपर चढ़ा दे, लेयर रख दे, तो वो जो ओपनिंग्स होता है, ओपनिंग्स मतलब जो स्टोमाटा, वो क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज होने का बाद क्या होगा? तो क्लोज होने का बाद उसका ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा। तो वो जो सब्सटेंस होता है जैसे ऑयल वैक्स इमल्सन, उसको हम एंटी ट्रांसपिरेंट्स एजेंट्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो ये जो ट्रांसपिरेशन होता है वो हम कैसे हम ट्रांसपिरेशन होता है हम कैसे एक्सपेरिमेंट से हम इसको दिखाएगा। देखो ये एक प्लांट है, एक प्लांट बॉडी, ओके। ये प्लांट बॉडी को तुम जस्ट कुछ देर सनलाइट में रख के उसको उठा के एक शैडो में रख दो। उसके बाद क्या है, ये जो उसका जो स्टेम है उसके ऊपर एक पॉलीथीन से इसका जो स्टेम से ये जो सॉइल होता है उसको कवर कर दो और एक रस्सी से इसके टाइट बांध दो, जैसे मिट्टी को हम सॉइल को बाहर से ना देख पाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक बेल जार, बेल जार मतलब एक कांच का एक बोलो बेल जार लेके ग्लास का उसका ऊपर रख के, तो वो जो जॉइनिंग है, हाँ, बेलजर उसमें वैक्स और ऑयल से उसको जॉइनिंग में दे दो, जैसे बाहर का कोई वाटर वेपर और एयर अंदर और अंदर का बाहर नहीं आ सकते। तो ये कुछ देर रखने के बाद तुम देखोगे जो ये बेलजर होता है ग्लास का, उसके अंदर थोड़ा बहुत बोलो पानी का ड्रॉपलेट्स आ जाता है, ठीक है। ये जो पानी का ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया? ये मिट्टी से नहीं आएगा, तो ये ड्रॉपलेट्स आएगा ये जो लीव्स है उसमें से। ये जो लीव्स ट्रांसपिरेशन से वाटर वेपर को रिलीज करेगा। ये वाटर वेपर जो ग्लास का बेलजर है उसका कूल डाउन होके उसमें कंडेंस होके उसमें अंदर बोलो जो स्टोर हो जाएगा, उसमें जो ड्रॉपलेट्स आएगा वो जो लीव से उसमें से निकल आया वेपर, और वेपर कंडेंस होके बेलजर का अंदर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है पानी का प्लांट बॉडी में बोलो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, ओके। तो ये था ट्रांसपिरेशन का मेनली मेन मैंने हमको पढ़ना क्या क्या चाहिए। तो पहला पढ़ना चाहिए डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, नंबर 1। नंबर 2 था उसका जो क्लासिफिकेशन होता है, उसका जो 3 तरफ के ट्रांसपिरेशन होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, स्टोमाटल, क्यूटिक्यूलर एंड लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, ओके। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, एक फिजिकल फैक्टर होता है, फिजिकल एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक इंटरनल फैक्टर होता है। दो एक्सटर्नल दो इंटरनल फैक्टर को तुम रीड करना होगा। और का इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन का पढ़ना होगा। तो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन से हम एक प्लान में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है उसको सिग्निफिकेंस पढ़ना चाहिए। और क्या कुछ बोलो डेफिनेशन, जैसे गार्टेशन क्या है, गार्टेशन और ट्रांसपिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, और ब्लीडिंग क्या है, एंटी ट्रांसपिरेंट्स क्या है होता है, ये सब। और क्या है देखो, और क्या है ये जो एक्सपेरिमेंट बताया, एक एक्सपेरिमेंट एक तरह से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है प्लांट बॉडी में ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, और ये तो हो गया, और ये चैप्टर में और कुछ पढ़ना नहीं होगा, ठीक है। तो और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर में दो जो सेल होता है उसको गार्ड सेल कहते हैं। ये जो गार्ड सेल और ये जो ओपनिंग को हम बोलो स्टोमाटा कहते हैं। ये दोनों टाइप का जो सेल होता है उसको गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है। जो मोनोकॉटिलेडोन प्लांट होता है उसमें बोथ सरफेस ऑफ लिप्स में ये स्टोमाटा होता है, और जो डाइकॉटिलेडोन प्लांट होता है, हाँ, उसमें ओनली लोअर फेस सरफेस में बोलो ओनली स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा इज द मेन पोजीशन वेयर ट्रांसपिरेशन ऑकर्ड, ओके। ये लास्ट था, ये चैप्टर ठीक तरह से पढ़ लो।